Lord. Hallelujah. Surok ধন্যবাদ দিছো ঈশ্বৰ আজি আমাক আশীৰ্বাদ কৰা কেনে আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰাম বাৰ আৰু এই সানডে সাৰ্ভিসৰ কেনে আমি প্ৰত্যেকে গোট খাইছো আৰু ইয়াত থকা লগতে আজিমান অনলাইন যোগেদি আজি গ্ৰেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈছে প্ৰত্যেকক মই ধন্যবাদ দিছো আৰু এই মই যিটো শাস্ত্ৰ পাঠ কৰিব কেনে লৈছো তাৰ লগতে এইটো Psalms 33 1 2 3 4 2 मैं पढ़ी दी। हे धार्मिकों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धार्मिक लोग को स्तुति करना शोभा देता है। बिना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ धार्मिक भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। प्रभु यीशु बाइक ऊपर आशीर्वाद থাকক। আহক प्रार्थना करूँ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर जेहोवा आपनाक धन्यवाद 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 दिसु कोटि कोटि बार आपनार चरणत परि पेলাই प्रणिपात करছো मान मर्यादाটো आपनाक दिसु कियनो আপুনি जीवित আপুনি सत्य আপুনি पवित्र হোৱা কেনে আপুনি আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা মালিক হোৱা কেনে आपनाक धन्यवाद दिसु हे पवित्र ईश्वर আজি আপুনি আমাক প্ৰেম কৰা কেনে দয়া কৰা কেনে নতুন দিন নতুন জীৱন দিছে আজি কিমান মানুহ প্ৰভু परमेश्वर आज ये दिन तो सब करने पारा नहीं किया और प्रभु अपना पवित्र नाम तो लब पार नहीं किंतु अपनी आमाक प्रेम करा केने आनपा अधिक प्रेम करा केने आज ये दिन तो आमी सब पाइलो और ये पवित्र दिनाकन अपना ओसर चापिसो अपना सेवा करब केने अपना प्रणिपात करब केने प्रार्थना करसु प्रभु अपनी आमाक सहाय करक आशीर्वाद करा आमी तो पापी तुजा अपना पवित्र नाम ला যোগ্য নহয় आमार दाय दुख अपराध आमार प्रत्येक जনৰ पाप तो क्षमा करे जिमान से यात उपस्थित আছে আর जिमान সবে পিতা অনলাইনৰ যোগেদি আপোনাৰ এই সার্ভিসত এটেন্ড কৰিছে প্ৰত্যেক ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰা जिमान বাধা দিয়া প্ৰাৰ্থনা গীৰ্জা আত্মিকতা থাকিব কেনে দিয়া সকলো অসুচিতাটো মই প্ৰভু যীশুৰ নামৰ পাতক মই খেদিছো যীশু খ্ৰীষ্ট নাম আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই দিয়া মন খেলিমেলি কৰা আত্মাস অস্থিৰ মন থকা যীশুৰ নামৰ পৰা ওলাই দূৰে যা আহক প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰ এই মোৰ পিতা পৰমেশ্বৰ ইয়াতে যি সন্তান দে আপোনাৰ জীবন জল বাক্য লৈ পেলাই আহিব তেওঁৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিব আৰু যি বাক্য ক'ব পিতা আত্মাৰ যোগেদি ক'ব কেনে আশীৰ্বাদ কৰি দিয় আৰু প্ৰত্যেক মনত টাচ কৰিব কেনে আৰু প্ৰত্যেক পিতা বচনটো শুনি পেলাই আপোনাক আঁঠুকাই পেলাই সেৱা কৰিব পাৰে কিয়নো আপুনি পিতাৰ ধন্যবাদ পোৱাৰ যোগ্য ঈশ্বৰ হয় প্ৰভু পৰমেশ্বৰ ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ দিছোঁ পিতা আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে লোক প্ৰভু এই সাৰ্ভিসটো মই প্ৰথমৰ পৰা পেলাই লাষ্টলৈকে আপোনাৰ হাতত খুদাই দিছো प्रार्थना प्रभु जीशुर नामत खुजिसु आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द थैंक यू ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি ভাল দিন আমাক দিয়াৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ আজি আমি সানডে আকৌ এবাৰ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ বাক্য আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সময় পালোঁ তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ আমি গীত কিতাপৰ পৰা এটি গীত গাম যিসকল আমি উপস্থিত আছোঁ তেওঁলোকে আৰু যিসকলে আজি ফেচবুক লাইভ বা ইউটিউব লাইভৰ যোগেদি আমাৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকক মই गीत অসমীয়া गीत कितापर 27 नम्बर 27 और सेक्रेट सॉन्ग 22 नम्बर आमी हकले थिय हम लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड सिंग द हिम इन Psalms 27 and in a sacred song 22 पवित्र पवित्र हे सर्वशक्तिमान बुआते আমি তোমার উদ্দেশ্যে
পবিত্ৰ পবিত্ৰ সৰ্বজ্ঞ কৃপাৱান তিনিজনে এক একেই তিনিজন পবিত্ৰ পবিত্ৰ সাধু সকলোৱে হেৰিছে কীৰ্তি দি তোমাৰে চৰণে কৰূপ চিৰাপ দূত হবে হৈ উবৰি তোমাকে আছে সেৱা কৰি পবিত্ৰ পবিত্ৰ মৰ্ত্য চকুৰ দ্বাৰাই যদিও তোমাৰ গৌৰৱ দেখা পোৱা নাযায় তুমি পবিত্ৰ তোমাৰ পূৰ্ণ বল প্ৰেমত তুমি সিদ্ধজন পবিত্ৰ পবিত্ৰ সৃষ্টিখনে গায় সদায় তোমাৰে স্তুতিগান পবিত্ৰ পবিত্ৰ প্ৰেমময় শক্তিমান তিনিজনে এক একেই তিনিজন আটাই বহিব প্লিজ বি সিটেড ঈশ্বৰে আমাক সুন্দৰ দিন দিলে সময় দিলে আশীৰ্বাদ কৰিলে জীয়াই ৰাখিলে তাৰ বাবে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ আৰু আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰ আৰু মোৰ মনত এটা কথা বেছি এই কথাটোৱে উদগনি দি আছে বা জগাই আছে সেই কথাটোৰ ওপৰতে আজি আমি কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ जैसे ही आज विश्राम बार है हम लोग सभी विश्वासी लोग क्रिश्चियन लोग हम लोग क्या करते हैं हम लोग रेस्ट करते हैं 6 दिन परमेश्वर ने हमें दिया परिश्रम करने के लिए और आज का दिन यहोवा हमें दिया है और इस दिन में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और स्तुति करेंगे और सारा काम को हम लोग छोड़ के प्रभु का धन्यवाद महिमा देते हैं तो मैं आज ये सोच रहा हूँ या आप लोग के लिए मैं एक प्रश्न ये लेके आया हूँ जो भी आज ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब के द्वारा जो फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे हैं अगर आज रात हम लोग गुजर जाते हैं मर जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे यदि আজি ৰাতি বা আজি অলপ সময় পিছত আমাৰ মৃত্যু হয় আমি কলৈ যাম এই প্ৰশ্নটো আমাৰ ভিতৰত মোৰ ভিতৰত এইটোৱে আমনি কৰি আছে বা জনাই এইটো এটা প্ৰশ্ন মোৰ ওচৰত আহি আছে যে কলৈ যাম আমি কলৈ যাম আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি আজি বাইবেলৰ পৰা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर कुछ हो जाते हैं दुनिया को छोड़ना पड़ता है तो हमें इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे यार पिछत हमें कॉलेज जाम बिकॉज लाइफ देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ इट इज नॉट एनफ दैट वी आर लिविंग ए फुल लाइफ स्पान ऑफ 70 and 80 years and after death there is nothing but Bible says that there is a life after death. So we have 2 words in English dictionary. One is eternal,
another is everlasting. Eternal and everlasting. এই দুটা শব্দ আমি বাইবেলত পাওঁ আৰু ইংৰাজীত ডিকশ্যনাৰীটো আমি পাওঁ इटर्नल और एवरलास्टिंग। जब मैंने डिक्शनरी को देख रहा था, इटर्नल वर्ड का मीनिंग जिसका कोई शुरू नहीं है, शुरुआत नहीं है, और जिसका कोई अंत नहीं है, उसको बोला जाता है इटर्नल या इटर्निटी। जैसे परमेश्वर, गॉड, ही इज इटर्नल क्रिएटर। हमारा परमेश्वर है जो जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको इटर्नल कहा जाता है। एवरलास्टिंग, इसका मतलब डिक्शनरी में लिखा है जिसका शुरू है लेकिन ख़त्म नहीं है, कभी उसका कहाँ ख़त्म होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला। এটা হৈছে অনন্ত কাল, সদায় থকা, এইটো হৈছে ইটাৰ্নিটি। এটা হৈছে এভাৰলাষ্টিং, যাৰ কোনো শেষ নাই, অসীম, বহুত দিনলৈ চলি থকা। গতিকে আমাৰ ঈশ্বৰ আহিছে इटर्नल। हमारा परमेश्वर जो है इटर्नल गॉड, और वो हमें एक एवरलास्टिंग लाइफ या उसका साथ रहने वाला एक जीवन देना चाहता है, और उसको उस लाइफ को बोला जाता है इटर्नल लाइफ, हमेशा रहने वाला जीवन या एवरलास्टिंग लाइफ, एंडलेस, जिसका कोई ख़त्म नहीं है, जार कोनो शेष নাই। তো সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ যিটো শিক্ষা আনিছোঁ তাৰ শিৰোনামা বা তাৰ হেডিংটো হৈছে ইটাৰ্নেল লাইফ, অনন্ত জীৱন, সদায় থকা জীৱন। ইটাৰ্নেল লাইফ কি হয়, অনন্ত জীৱন কি হয়, তাক আমি কৰিম। আমি চাওঁ, if we read John chapter 17 and verse 2. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Verse 3. Now this is eternal life, that they may know you, and that only through God and Jesus Christ whom you have sent. জোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 17 অধ্যায় 2 পদ আৰু 3 পদ যেতিয়া আমি পাঠ কৰোঁ, তাত আমাৰ দুটা পদত আমাক জনা গৈছে, দেখুওৱা গৈছে, যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে যে তেওঁলোকক যেন মই অনন্ত জীৱন দিব পাৰোঁ, যাতে তেওঁলোকক যেন মই অনন্ত জীৱন দিব পাৰোঁ। আৰু তৃতীয় পদত কৈছে যে অনন্ত জীৱন কি হয়, হোৱাট ইজ ইটাৰ্নিটি, হোৱাট ইজ ইটাৰ্নেল লাইফ, অনন্ত জীৱন কি হয় তাক যীশুখ্ৰীষ্টই জনাইছে, প্ৰাৰ্থনাত ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছে। जॉन चैप्टर 17 जो है ये सबसे यीशु मसीह का सबसे लंबा रिकॉर्डेड प्रेयर है। रिकॉर्ड, जिस प्रेयर का रिकॉर्ड किया गया है जॉन के द्वारा, रिकॉर्डेड प्रेयर। ये जो जॉन चैप्टर 17 1 से लेकर लास्ट तक अगर आप पढ़ेंगे, एक प्रार्थना है यीशु मसीह का, और ये प्रार्थना को 3 हिस्सा में बांटा गया है। एक हिस्सा है जॉन चैप्टर 17 1 to 5, यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना किया। जॉन चैप्टर 17 verse 1 to 5, if you go through these verses, you will find that Jesus prayed for himself, वो अपने लिए प्रार्थना किया। If we read John chapter 17 verse 6 to 19, then you will find he prayed for his disciples, वो अपना जो चेला लोग के लिए प्रार्थना किया। और तीसरा John chapter 17 verses 20 to the end, to the last verse, he prayed for all believers। তেওঁ গোটেই বিশ্বাসীসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। তিনিটা ভাগত আমি জোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 17 অধ্যায় 1 পৰা 26 পদটো আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমে তেওঁ নিজৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, দ্বিতীয়তে তেওঁ নিজৰ শিষ্যসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, আৰু তৃতীয়তে তেওঁ গোটেই বিশ্বাসীসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। এই গোটেই বিশ্বাসীসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত ইয়াত আমাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। Remember one thing, that when he prayed for the all believers, though he did not mention our name specifically, but he prayed for us. আজিৰ যিমান বিশ্বাসীসকলে, যিমানবিলাকে আজি যীশুক বিশ্বাস কৰি আছে,
গ্ৰহণ কৰি আছে, নিজৰ ত্ৰাণকৰ্তা আৰু উদ্ধাৰকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰভুৱে আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, নিবেদন কৰিছিলে। চ' আমি আজি যোহানে লিখা শুভবাৰ্তাৰ যিটো 17 অধ্যায় তাৰ প্ৰভুৱে প্ৰাৰ্থনা কৰাটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা নকৰোঁ, কিন্তু আজি আমি আলোচনা কৰিম অনন্ত জীৱন, ইটাৰনেল লাইফ। গোটেই ভাৰ্চটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিম, আপোনালোকে গোটেই ভাৰ্চটো মন কৰিব। John chapter 17 verse 3, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. They may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent. যেতিয়া মই গ্ৰীক বাইবেলত চালোঁ, গ্ৰীক, the word for eternal is aionios, A-I-O-N-I-O-S, aionios. This means unending, no time bonding. অনন্ত জীৱনৰ যেতিয়া গ্ৰীক ৱৰ্ডটো বিচাৰিলোঁ, aionios বুলি কৈছে। aionios শব্দটোৰ অৰ্থটো হৈছে যিটো শেষ নহয়, যিটো কোনো তাৰ ভাঙনি নাই। থেংকছ টু জন উইক্লিফ। পাৰ্চনেলি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মই জন উইক্লিফক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। জন উইক্লিফ কোন হয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়ালৈকে জানিব। জন উইক্লিফ, হি ইজ দ্য পাৰ্চন হু ৰোট দিছ বাইবেল, হু ট্ৰান্সলেট দিছ বাইবেল টু ইংলিছ। তেওঁ এই ইংলিছ বাইবেলখনক তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে গ্ৰীক বা হিব্ৰু ভাষাৰ পৰা, কিয়নো আগতে নিয়ম আছিলে যে বাইবেলখন পঢ়িবৰ কাৰণে আপুনি হিব্ৰু বা গ্ৰীক ভাষাটো জনা দৰকাৰ। আৰু এনে কৰিলে কি হ'ব, কিছুমান বিশেষ শ্ৰেণীৰ মানুহেহে বাইবেলখন পঢ়িব পাৰিব। বেলেগ মানুহ, সাধাৰণ মানুহ, আপোনাৰ আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহে বাইবেলখন পঢ়িব নোৱাৰিব। তাত কি লিখা আছে সেই কথাটো বুজিব নোৱাৰিব। ওপৰত থকা যিসকল ধৰ্মযাজক হ'ব বা যিসকলৰ হাতে যিসকলে বাইবেলখন পঢ়িব জানিব, ইব্ৰী বা গ্ৰীক ভাষাটো, তেওঁলোকেহে বাইবেলখন পঢ়িব আৰু ভাঙনি কৰিব। আৰু আমি অকৰা মানুহৰ নিচিনা হয় হয় বা কি কৈছে তাতে আমি হাতে হাঁ মিলাম। তেওঁলোকে যদি অসত্যও শিকায় আমি তাতে হ বুলি ক'ব লাগিব, যদি তেওঁলোকে সঁচাকৈও শিকায় আমি তাকো অ বুলি ক'ব লাগিব। এই কথাটোৰ কাৰণে জন উইক্লিফে তেওঁ বিৰোধ কৰিলে, ভিতৰে ভিতৰে, প্ৰকাশকে নহয়। আৰু তেওঁ ঘৰতেই বহি এই বাইবেলখন হিব্ৰু ভাষাৰ পৰা গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা সলনি কৰি ইংৰাজীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে। থেংকছ টু জন উইক্লিফ যে তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁ হিব্ৰু ভাষাটো বা গ্ৰীক ভাষাটো তেওঁ ইমান ভালকৈ জানিছিলে যে তাৰ সঠিক इंग्रजी भाषा तो जो जॉन विक्लिफ जो ग्रीक और हिब्रू जो उसका जो लैंग्वेज इतना अच्छा से उसको आता था कि उसने उसका सही इंग्लिश मीनिंग को निकाल के और आज इंग्लिश बाइबल को निकाल दिया। किंग जेम्स वर्जन एंड न्यू किंग जेम्स वर्जन जितना भी आज निकला है वो जॉन विक्लिफ के जो ट्रांसलेशन के द्वारा हुआ है। तब इसने इटर्नल जो वर्ड को में इस्तेमाल किया गया उसका ग्रीक ने जो वर्ड है एनोनियस, जिसका मतलब है जिसका कोई स्टार्टिंग भी नहीं है, जिसका कोई एंडिंग भी नहीं है, जिसको इसी को कहा जाता है इटर्निटी। तो अभी इसमें बोला है जे व्हाट इज इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह ने अभी इसमें हम लोग देखा, यीशु मसीह कहता है कि इटर्नल लाइफ अनंत जीवन क्या है, हदाई थोका जीवन की है, टू नो यू, आपको जानना। किसको जानना? परमेश्वर को जानना। टू नो गॉड, परमेश्वर को जानना, ये एक अलग बात है, एक अलग बात है। अब कोई भी व्यक्ति का लाइफ हिस्ट्री पढ़ के आप कह सकता है यस आई नो हिम। जैसे हम लोग भारत का राष्ट्रपिता बोलते हैं बापूजी, हम लोग उसका बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसका बारे में हम लोग किताब में पढ़ के, उसका बायोग्राफी पढ़ के हम लोग को पता चलता है कि बापूजी ऐसा ऐसा था, वो इतने तकलीफ़ किया, ये किया। या हम लोग का जो भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हम लोग उसका बारे में कि जो हम लोग का जो वर्ड का जो किताब का नॉलेज से हम लोग को पता चलता है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। टू नो गॉड, ईश्वरक जना, टू नो गॉड मीन्स टू नो हिम पर्सनली, to have an intimate relationship with God, an intimate relationship. Let this word strike in your heart.
मेरा ये वचन आपका हृदय में आघात करे, आप इस वचन को आपका हृदय में आने दे ताकि पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करे। मैं इस वचन को बोल रहा हूं कि आप जो परमेश्वर को आप जानते हैं, हाँ मैं बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह ऐसा है, उसका पिता परमेश्वर ऐसा है, पवित्र आत्मा ऐसा है, आप लोग जानते हैं। बहुत से आदमी लोग गॉड का ऊपर बड़ा बड़ा थेसिस लिख के रखा है। बहुत सा व्यक्ति लोग यीशु मसीह का ऊपर में वो थेसिस सबमिट करते हैं या अपना जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं। होली स्पिरिट का ऊपर में भी वो लोग बहुत सा वचन को लिखते हैं और बहुत सा भर भर के वो लोग बोलता है। जब वो लोग को प्रीचिंग करने के देने से होली स्पिरिट का बारे में ऐसा बताएगा कि जो नहीं जानने वाला बात भी वो बताएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और पवित्र आत्मा उसको प्राप्त करते हैं या परमेश्वर का जानते हैं। वो वर्ल्डली नॉलेज से, दुनियादारी का ज्ञान से वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, वो बताते हैं। टू नो पर्सनली, टू हैव ए इंटीमेट रिलेशनशिप, ঈশ্বৰৰ লগত ঈশ্বৰক একদম ব্যক্তিগতভাৱে জনা, খুব ওচৰৰ পৰা জনা, তেওঁৰ লগে লগে থকা, তেওঁৰ লগে সংগে সংগে চলা, এইটো হৈছে অনন্ত জীৱন। টু নো গড, ঈশ্বৰক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা জনা। কিমান ভাল লাগিলে যেতিয়া মই ৱৰ্ডটো পালোঁ, যেতিয়া মই এইটো পঢ়িলোঁ যে অনন্ত জীৱন কি হয়। অনন্ত জীৱন হৈছে ঈশ্বৰক ওচৰৰ পৰা জনা। মোৰ ঈশ্বৰক মই চিনি পাওঁ, মোৰ ঈশ্বৰক মই জানো, মই য'তেই যাওঁ তেওঁ মোৰ সংগী হয়, মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁ মোৰ আগত উপস্থিত হয়, যেতিয়াই মই দুখত পৰোঁ তেতিয়া তেওঁ মোক সান্তনা দিয়ে, আৰু যেতিয়াই মই থিয় হওঁ তেওঁ মোৰ সোঁহাতে থিয় হয়, কিয়নো মোৰ ঈশ্বৰ মোৰ লগত থাকে। এই বাক্যটো আপোনাৰ জীৱনতো হ'ব লাগে। এই বাক্যই আপুনিও ক'ব পাৰিব লগা হ'ব পাৰে, আই ন' মাই গড, I know my God. মই মোৰ ঈশ্বৰক জানো। That is why Jesus said that to know you, তোমাক জনা, কাক? সত্য ঈশ্বৰক জনা, সদায় থকা ঈশ্বৰক জনা, যিজনৰ কোনো আৰম্ভ নাই, যিজন আদি আৰু যিজন অন্ত, যিজনৰ কোনো আৰম্ভণি নাই, যিজনৰ কোনো শেষ নাই, সেই ঈশ্বৰক জনা হৈছে অনন্ত জীৱন। আৰু ঈশ্বৰে আজি সেই প্ৰভুৱে আজি সেই ঈশ্বৰৰ লগত সদায় থাকিবৰ কাৰণে জীৱন। মই যিটো ষ্টাৰ্টিং আজি শিক্ষাটো দিয়াৰ আগতে যিটো কথা দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে আজি যদি মোৰ মৃত্যু হয় মই ক'লৈ যাম, अगर आज मेरा देहांत होता है मैं कहाँ जाऊंगा। दो जगह हम बाइबल में हमें लिखा गया है। दुनिया में रहते हुए अगर आपका सृष्टि करने वाला परमेश्वर को आप कभी नहीं उसको स्वीकारा, उसको जानने के लिए कभी आप कोशिश नहीं किया, आप उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए भी कोशिश नहीं किया, आप उस परमेश्वर कैसा है कभी उसके लिए खबर नहीं लिया, हमेशा दुनियादारी के रास्ता में चला, हमेशा धन संपत्ति आप कैसे एक्यूमुलेट करें, आप कैसे इस जगत का जो दुनिया का इच्छा का अनुसार चले, आपका शरीर का अभिलाष को पूरा करें, आप ऐसे चलें। अगर आपका देहांत होता है, मृत्यु होता है, तो आपके लिए एक जीवन है, देयर इज अ लाइफ, लेकिन वो जीवन है हमेशा दुख में, आग में जलने वाला जीवन, जिसको बोला गया है हेल, दुजक, नरक जिसको बोला जाता है। लेकिन अगर आपका सृष्टि करने वाला को आप जान चुका है, यस आई नो माई क्रिएटर, मैं अपना सृष्टि करने वाला प्रभु को मैं जान चुका हूँ, मैं अपना जो मुझे दुनिया में जिसने भेजा मैं उसको जान चुका हूँ, और मेरा जीवन जैसे आप 30 साल आप दुनियादारी में बिता, 30 साल का बाद आपका सत्य परमेश्वर को आप जान चुका है, आप डिसाइड किया है अभी से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल लिव for my savior, I will live for my creator, I will surrender my life, I will obey him। अगर आप मानते हैं, आप कहते हैं, तो प्रभु आपका साथ रहेगा। अगर आज आपका देहांत होता है, वो परमेश्वर आपको वो जीवन में देगा जहां वो हमेशा रहेगा, बिकॉज बाइबल का लिखा है तुम लोग वहां रहोगी जहां मैं रहूंगा,
तुम लोग वहां रहोगे जहां मैं रहूंगा। और वो जो परमेश्वर कहाँ रहता है? इटर्निटी में रहता है, हमेशा रहने वाला लाइफ, कभी खत्म नहीं होने वाला लाइफ में रहता है। और परमेश्वर हमें भी उस लाइफ को देने के लिए, वहां ले जाने के लिए प्रभु आशा करता है। इसीलिए आज आपको मैं इटर्निटी के बारे में, इटर्नल लाइफ का बारे में, अनंत जीवन का बारे में बताना चाहता हूं। आप देखिए जॉन चैप्टर 5 वर्स 24 में लिखा है, जॉन चैप्टर 5 वर्स 24, whoever hears my word, John chapter 5 verse 24, whoever I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life। कितना सुंदर ने यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया है। যীশু খ্ৰীষ্টই কিমান ভালকে সুন্দৰ ভাৱে ইয়াত কৈছে, I tell you the truth, মই সঁচা কথা তোমাক কৈ আছো, মই সঁচা কাহিনী, সঁচা কথাটো মই তোমাক কৈ আছো, যিটো ফেক্ট হয়। whoever hears my word, যিসকলে মোৰ বাক্য শুনে, and believes him, আৰু বিশ্বাস কৰে সেইজনক, who sent me, যিজনে মোক পঠালে, has eternal life and will not be condemned, সেইজনৰ আৰু কি হ'ব? দণ্ডাজ্ঞা নহ'ব, কণ্ডেমনেশ্যন নাহিব, তেওঁক দণ্ড দিয়া নাযাব। কিয়নো যিজনে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শুনে, যীশুখ্ৰীষ্টই কি কৈ আছে সেই বাক্যটো শুনে, আৰু যিজনে যীশুখ্ৰীষ্টক পঠালে সেইজনক বিশ্বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ অনন্ত জীৱন পাব। তেতিয়াহ'লে যোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 17 অধ্যায় 3 পদ আৰু যোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 5 অধ্যায় 24 পদত এই কথা দুটা আপুনি কম্বাইন কৰি চাওক। টু ন' দ্য ট্ৰু গড, সত্য ঈশ্বৰক জনা আৰু তেওঁৰ বাক্য মানি চলা, আমাক কি হ'ব? অনন্ত জীৱন দিব। There is power in the word of God, ঈশ্বৰৰ বাক্যত শক্তি আছে, এই কথাটো মনত ৰাখিব। ঈশ্বৰৰ বাক্য যিখন বাইবেল আজি হল ভাঙনি কৰা গ'ল, প্ৰত্যেকটো ভাষাত এই বাইবেলখন আছে। আমি যিটো ভাৱনা কৰোঁ, যিটো ভাষাৰ বিষয়ে আমি ভাৱনা কৰোঁ, সেইটো ভাষাতেই বাইবেলখন আছে, আমি জানো। এতিয়া এই বাইবেলখনৰ ৱৰ্ডবিলাক তাতে তাৰ কিছুমান শক্তি আছে, বাইবেলৰ বাক্যত শক্তি আছে। মই আজি শ্বৰ্টলি এই বাইবেলৰ বাক্যত কি কি শক্তি আছে আপোনাক ক'বৰ কাৰণে কৈছোঁ। এখন যেতিয়া আপুনি পঢ়ে, এখন উপন্যাস বা এখন মেগাজিন বা এখন এনেই পঢ়িব লাগে বুলি পঢ়িব লগা কিতাপ বুলি নপঢ়িব। Expect miracle in your life when you read the word of God, because God has created this world through his word only. Praise the Lord. ঈশ্বৰে এই পৃথিৱীখন নিজৰ বাক্যৰ যোগেদি সৃষ্টি কৰিলে। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আপুনি পঢ়িব, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ জীৱনত সেই আচৰিত কামটো হোৱাটো আশা কৰিব। কেলে? ঈশ্বৰে ক'লে আকাশমণ্ডল সৃষ্টি হওক, আকাশমণ্ডল সৃষ্টি হ'ল। ঈশ্বৰে ক'লে গছ গছনি সৃষ্টি হওক, গছ গছনি সৃষ্টি হ'ল। ঈশ্বৰে ক'লে সকলো বস্তুবিলাক তেওঁ সৃষ্টি কৰিলে, যিমান জীৱ জন্তু নদী নলা সকলো সৃষ্টি কৰিলে। কাৰ যোগেদি? তেওঁ বাক্যৰ যোগেদি। परमेश्वर वचन बोला और सब कुछ हुआ। उसी तरह जब ये वचन को आप ध्यान करते हो, आप इसको इसके द्वारा जब पढ़ते हो, ये एक ऐसा इसमें आप आशा करो कि ये वचन मेरा जीवन में काम करे, क्योंकि बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। वचन ही देहधारी हुआ, और ये वचन ऐसा चीज है, ये आपको ये बाइबल में लिखा है, वो एक आग का जैसा है। और वचन कैसा है? वो एक बड़ा सा हमर का जैसा, हमर हथौड़ा, जिसके द्वारा पीटता है कोई। जैसे हम लोग देखते हैं ब्लैक स्मिथ, क्या बोलते हैं हिंदी में? कमार, जिसको कम्हार बोला जाता है, लोहार बोला जाता है। लोहार लोग बड़ा जो लोहा का पट्टी को वो लोग हथौड़ा से पीटते हैं। हथौड़ा से पीटने से वो लोहा को अपना साइज से वो बना सकता है, अपना साइज अनुसार दे सकता है। परमेश्वर का वचन आपका जीवन को शेप देने के लिए, आपका जीवन को एक परफेक्ट शेप देने के लिए वो एक हथौड़ा का जैसा है। जैसे लोहा को आग में डालने से लोहा क्या होता है? गर्म होता है, लाल होता है, और लाल लोहा को जब पीटता है वो अपना शेप में आता है। परमेश्वर का वचन आग का जैसा। इज नॉट माई वर्ड इज लाइक बर्निंग फायर, बाइबल में लिखा है। इज नॉट माई वर्ड बर्निंग फायर, मेरा वर्ड क्या आग का जैसा नहीं है? परमेश्वर का वचन आग का जैसा है। जब आप परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं, ये आपका शरीर में आग जैसा फीलिंग होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का वर्ड पढ़ रहा हूं, ये वर्ड आपका जब आप पढ़ते हो, वो आपका शरीर को जितना भी गंदगी है,
जैसे सोना जब उसको आग में डाला जाता है और रिफाइन होता है, रिफाइन मतलब परिष्कार होता है, हुनक যেতিয়া জুইত দিয়া যায় বা জুইত গলোৱা হয় হুনৰ পৰা লেতেৰাবিলাক ওলাই যায়, আঁতৰি আঁতৰি গৈ থাকে। ঠিক তেনেকে ঈশ্বৰৰ বাক্যই আপোনাৰ জীৱনত যেতিয়া সোমাব আপোনাৰ লেতেৰাবিলাক সফা কৰি কৰি গৈ থাকিব, আপোনাক পৰিষ্কাৰ কৰিব। So let's quickly see what is the word of God. Number 1, it is the food for your soul. Word of God is food for your soul. ईश्वर परमेश्वर का जो वचन है वो आपका जो आत्मा के लिए, जो आत्मा आपका प्राण के लिए ये भोजन है। कितना सुंदर बात है। ভোজন ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাৰ এইটো প্ৰাণৰ কাৰণে কি আছে ভোজন। আপুনি আহাৰ খায় ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি ৰাতি আপুনি আহাৰ খায়, কিন্তু সেই আহাৰে আপোনাৰ শৰীৰটোহে কি কৰে, আপোনাৰ শৰীৰটোহে আপোনাৰ উপকাৰ কৰে। কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত এটা বস্তু সোমাই আছে, এইটো হৈছে প্ৰাণ। আপোনাৰ প্ৰাণটোক আপুনি কি খাবলৈ দিয়ে? আপোনাৰ প্ৰাণটোক আপুনি কি খাবলৈ দিয়ে? বাইবেলে কৈছে আপোনাৰ প্ৰাণটোক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে শৰীৰটো নহয় প্ৰাণটোক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আপোনাক আত্মিক আহাৰ দৰকাৰ আছে। Psalm number 119 and verse 3, How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. ঈশ্বৰৰ বাক্যটো কিমান মিঠা, sweeter than honey, মৌতকৈও মিঠা। ঈশ্বৰৰ বাক্যটো মৌতকৈও মিঠা। Jeremiah chapter 15 verse 16, When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, O Lord God Almighty. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আহিলে তাক মই খাই দিলো, জেৰেমিয়াই কৈছে। ঈশ্বৰৰ বাক্যটো যেতিয়া আহিলে তাক মই খাই দিলো। ঈশ্বৰৰ বাক্যটো খোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, মোৰ আনন্দ, জয়, আনন্দ আহিলে আৰু মোৰ অন্তৰখন একদম আনন্দ সুখেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ল। ডিলাইট, আনন্দিত হৈ উঠিলে, মোৰ অন্তৰখন আনন্দিত হৈ উঠিলে। मेरे प्यारे भाई बहन, आज आप अपना शरीर के लिए बहुत कुछ करते हो। मीट, मछली, जितना भी आप दुनियादारी का प्रोटीन वगैरह आप खा लेते हो आपका शरीर के लिए जिंदा रहे, लेकिन आप आत्मा के लिए आप कुछ भी नहीं करते हो। आप आपका अपना आत्मा जिंदा रहने के लिए, क्योंकि जब आदमी इस शरीर को त्याग देता है, उसका देहांत हो जाता है, मर जाता है, उसका शरीर तो रह जाता है। जो शरीर के लिए इतना तकलीफ किया उसने, ये शरीर को जिंदा रखने के लिए जो जितना भी खाना चाहिए सब खाया, नहीं खाने वाला चीज़ भी वो खाया, किस लिए? वो शरीर को जिंदा रहने के लिए। लेकिन उसका अंदर में जो चीज़ था, जिस चीज़ के वजह से उसको जिंदा व्यक्ति बोला जाता है, वो चीज़ जब निकल के चला गया, वो दुनिया में रहते हुए कभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं किया। He did not do anything for his soul. आज आपको सोचना बहुत जरूरी है। मैं यदि आज राति मोर देहांत हो जाए, मैं मरी जाऊँ, यदि आज मोर এই পৃথিৱীত নাথাকো, মই কলৈ যাম? মই যিটো আজি আপোনাৰ ভিতৰত লুকাই সোমাই আছে, মই এই বস্তুটো আপোনাৰ শৰীৰটো থাকি যাব, কিন্তু মই যিটো বস্তু আজি আপোনাৰ ভিতৰত আছে প্ৰাণ, সেইটো ওলাই যাব। কেতিয়াও আপুনি ঈশ্বৰক চিনিয়ে নাপালে, কেতিয়াও আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো অধ্যয়নেই নকৰিলে, কেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰাণটোক খাবলৈ নিদিলে, আপুনি শৰীৰটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই প্ৰাণ এই কি হ'ব? সেই অনন্ত যি জুই তাত জ্বলিব। The word of God is a light in a darkness. ईश्वर वाक्य परमेश्वर का जब वचन है अंधकार में वो उजाला है। Psalm number 19 verse 8, The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. इस परमेश्वर का जब वचन है वो क्या है? सही है, right, एकदम बिल्कुल सही है। और हमारा जो हार्ट, जो हमारा दिल को क्या करता है? आनंदित करता है, आनंदित करता है, दिल को आनंदित करता है और आपका आंखों में रोशनी देता है। You have to read the word of God. You have to go through the word of God morning or evening, because it will refresh your soul, refreshing আপনার
প্ৰাণটো সতেজ কৰিব, সজীৱ কৰিব, আপোনাৰ প্ৰাণটো কি কৰিব? নতুন কৰিব, নৱীকৰণ, ৰিনিউ। Psalm number 119 and 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. তোমাৰ বাক্য মোৰ ভৰিৰ কাৰণে প্ৰদীপ আৰু ৰাস্তাৰ কাৰণে পোহৰ। ঈশ্বৰৰ বাক্যই আপোনাক পোহৰ দিব, ঈশ্বৰৰ বাক্যই আপোনাক ৰাস্তা দেখুৱাই লৈ যাব। ঈশ্বৰৰ বাক্যত আপুনি থাকিলে ই আপোনাৰ অন্ধকাৰত পোহৰ দিব, কিয়নো এই সংসাৰত আপুনি ক'ত চলিব লাগে, কেনেকৈ চলিব লাগে, ক'ত যাব লাগে আপুনি নাজানে। ये बात हमेशा याद रखना। बाइबल कहती है, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप उसमें इस वचन को दिखा जाएगा। शैतान ने यीशु मसीह को कहा था, द होल वर्ल्ड हैज गिवन टू मी, द होल वर्ल्ड हैज गिवन टू मी। पूरा दुनिया जो है वो मुझे दिया गया है। ये पूरा दुनिया किसका अधीन में है? शैतान का अधीन में है। अंधकार का जो राजा, जिसको बाइबल ने लूसीफर, बेल्जेबुल बोल के बोला गया है, उसका अधीन में है। आप कहाँ जा रहे हो? अगर आप परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का प्रदीप, परमेश्वर का लाइट आपका ऊपर में नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो आपको पता नहीं चलेगा और आप शैतान का जाल में, शैतान का ट्रैप में जाके आप गिरोगे। इसीलिए आपको इस दुनिया में चलने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप परमेश्वर का वचन को ध्यान करें, उसमें चले, आप परमेश्वर का वचन में चले। अगर आप परमेश्वर का वचन में नहीं चलते हैं तो आप शैतान का ट्रैप में जाके गिरेंगे। शैताনৰ জালত গৈ পৰিব, নাজানে ক'ত জাল পাতি থৈছে আপোনাক ধৰিবৰ কাৰণে, ক'ত আপোনাক বিপদত পেলাবৰ কাৰণে শৈতানে বিচাৰিছে, তাক আপুনি নাজানে। সেইকাৰণে আজি আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো পঢ়িব লাগে। The word of God is a blessing to those who respect। ईश्वर वाक्य को जिसने रेस्पेक्ट दिए, परमेश्वर का वचन को रेस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर का वचन को लेके आप सेवा करें, इस वचन को लेके आप उसको, इस बाइबल को लेके आप उसको बहुत ही भक्ति से, बहुत जिसका बहुत हम बहुत विश्वासी का घर में देखते हैं, बहुत ऊपर में अच्छा से रख देते हैं। क्या है? मेरा पिताजी का जो बाइबल है वो बहुत बहुत पुराना बाइबल है, उसमें एकदम बिल्कुल नया है, पढ़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड सो कॉल्ड रेस्पेक्ट। ये वो कहने का लिए रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट का मतलब है जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। रिमेंबर दिस वर्स, इस वचन को आप एकदम अच्छा से रखिएगा। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, डू नॉट लेट दिस बुक ऑफ द लॉ डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, মেডিটেট অন ইট ডে এণ্ড নাইট। এই নিয়মৰ পুস্তকখনি তোমাৰ ওচৰৰ পৰা, মুখৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিদিবা, কিন্তু দিনে নিশাই তাক ধ্যান কৰিবা। ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আপোনাৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নহয়। যেতিয়া আপুনি কথা পাতে, আপোনাৰ কথাত ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ গোন্ধ থাকিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি কিবা এইটো মানুহৰ লগত আলোচনা কৰে, তাত ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অভিষেক থাকিব লাগিব। আপুনি যেতিয়া যিকোনো কামত আপুনি যায়, তাৰ মানে এইটো নহয় যে আপুনি বিজনেছ কৰে, আপুনি কিবা চাউলৰ ব্যৱসায় কৰে বা কিবা ব্যৱসায় কৰে, তাত আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য মিলাই পিনে ক'বলৈ মই আপোনাক কোৱা নাই। মই আপোনাক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঈশ্বৰৰ বাক্যই আপোনাক কিদৰে চলিবৰ কাৰণে শিকাইছে। হাউ দ্য ৱৰ্ড অফ গড টিচেছ ইউ টু লিভ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। কেনেকৈ আপোনাক চলিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, আপুনি কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ বাক্যত থাকি চলিব পাৰে, সেইমতে আপুনি ব্যৱসায় কৰক। কিয়নো ব্যৱসায় নকৰিলে বা কাম নকৰিলে বা পৰিশ্ৰম নকৰিলে, বাইবেলে কৈছে যি পৰিশ্ৰম নকৰে সি নাখাওক, ভোজনো নকৰক। আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। আদম আৰু হাৱাৰ ওপৰত এইটো ঈশ্বৰৰ, এইটো আদমৰ ওপৰত এইটো ঈশ্বৰৰ হাও আছিলে, যেতিয়ালৈকে তুমি মূৰৰ ঘামটো মাটিত নেপেলোৱা আৰু তেতিয়ালৈকে তুমি তাৰ পৰা খাব নোৱাৰা। তাৰ মানে পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব। আপুনি এচিৰ ওপৰত, এচিৰ ভিতৰত বহি থকা মানুহজনেও সেই পৰিশ্ৰম কৰে, তেওঁৰো মূৰৰ ঘামটো মাটিত পৰে। আৰু পথাৰত গৈ শস্য যিজনে খেতি কৰে বা হাজিৰা কৰে, তেওঁৰো মূৰৰ ঘাম মাটিত পৰে। কিহৰ কাৰণে? এইটো কষ্ট কৰিলে খাব লাগিব। কিন্তু আপুনি সত্যত থাকি, সঁচা ৰাস্তাত থাকি ঈশ্বৰৰ বাক্যত মানি চলিব লাগে। এতিয়াতো মই চাৰ্চত নাই, এতিয়াতো মই এটা সাধাৰণ, এতিয়া মই এজন কাম কৰা মানুহ, মই এতিয়া তেওঁ যেনেকৈ চলিছে মই তেনেকৈ চলিম। ন। तो आप डबल स्टैंडर्ड मान के चल रहे हो। डबल स्टैंडर्ड लाइफ क्या लिखा है? वो एक वेव का जैसा है, वो एक वेव का जैसा है। समंदर का जो क्या बोलते हैं, वेव,
लहर का जैसा है। समुद्र का लहर जो आता है फिर किनारे में टक्कर लगा के फिर चला जाता है। डबल स्टैंडर्ड आदमी वैसा है कि वो उसका फेज भी वैसा है, वो वेव का जैसा, लहर का जैसा है। भाई बहन, आपको परमेश्वर का वचन को मान के चलना है, चाहे इसके लिए आप जो भी हो, आदमी आपको जो भी बोले, लेकिन आप परमेश्वर का वचन से, बाइबल इसमें लिखा है, डू नॉट टर्न राइट और लेफ्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ईश्वৰৰ বাক্যত আপুনি লাগি থাকিব। Psalm 119 verse 9 কৈছে, পিউৰিফাইজ দ্য লাইফ, জীৱনটোক পৰিষ্কাৰ কৰে। মই বহুত আনন্দ পালোঁ, বহুত ভাল লাগে যেতিয়া কয় জীৱন পৰিষ্কাৰ কৰা, পিউৰিফাইজ ইয়ৰ লাইফ। Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? এজন ডেকা মানুহে কেনেকৈ তেওঁৰ জীৱন, তেওঁৰ ৰাস্তা, তেওঁৰ লাইফটো পবিত্ৰ কৰি চলিব? ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম, ষ্ট্ৰাগলিং লাইফ। ময়ো ডেকা বয়সৰ পৰাই পাৰ হৈ আহিছোঁ। ডেকা বয়সটো আগৰ দিনত, মানে আমাৰ সময়ত, আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত আমি যেতিয়া ডেকা আছিলোঁ, এতিয়া অলপ বুঢ়া হ'লোঁ। 20 বছৰ আগত যেতিয়া ডেকা জীৱনটো আছিলে, তেতিয়া সিমান বেয়া বস্তুবিলাকত ইমান নাছিলে। তেতিয়া মোবাইল নাছিলেই বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মানুহে বেয়া বস্তুৰ ভিতৰত মদ ভাংবিলাকে খাইছিলে। এইবিলাক মোবাইলৰ বেয়া এইবিলাক বা ইণ্টাৰনেটৰ এইবিলাক ইমান নাছিলে। বহুত অঞ্চলবিলাকত আড্ডা মৰা গৈছিলে খালি বহি পিনে দোকানত। তো এনেকুৱা কাৰ্যবিলাক কৰিছিলে। ডেকা ল'ৰা বুলি ক'লেই নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণে বহুত চিন্তা কৰে। মই কেনেকৈ এই বেয়াটোৰ পৰা ওলাই আহিম, কেনেকৈ মই এই বেয়া কাৰ্যবিলাক এৰিম, কেতিয়াবা তেওঁ চিন্তা কৰে। ডেকা ল'ৰাবিলাকেও চিন্তা কৰে, গাভৰু ছোৱালীবিলাকেও চিন্তা কৰে যে মই পাপৰ পৰা বা বেয়াৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে কষ্ট হয়। কিন্তু বাইবেলে আমাক কি কৈছে? গীতমালা 119:9 পদত, বাই লিভিং একৰ্ডিং টু ইয়ৰ ৱৰ্ড। जब आप परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने के लिए कोशिश करेंगे या चलेंगे, तब परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा? गिव यू व्हाट ही विल गिव यू, ही विल प्यूरिफाइज योर लाइफ। आपका लाइफ को क्या करेगा? परिष्कार। आपका लाइफ को क्या करेगा? सफा। आपका लाइफ को क्या करेगा? आपका लाइफ को बिल्कुल क्लीन करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, जॉन चैप्टर 15 verse 3, यू आर ऑलरेडी क्लीन because of the word I have spoken to you. Through the word of God only you will be clean. So read the word of God, meditate it, and when you read the word of God, the Bible says, whoever hears my word and believes, whoever hears my word and believes, if you read the word of God and you believe the word of what the meaning says, then you will have eternal life. যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শুনে, ঈশ্বৰৰ বাক্যটো পালন কৰে, বিলিভ কৰা মানে পালন কৰে, মানে বিশ্বাস কৰে, আৰু যিজনক ঈশ্বৰে যীশুক পঠালে তেওঁক বিশ্বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে অনন্ত জীৱন আছে। So what is eternal life? If somebody asks you, then you can say, now you can reply him that the life with God. In this world we may have the life with God. But after death, we will inherit in the kingdom of God and dwell forever and ever and ever. আমি এই পৃথিৱীটো ঈশ্বৰৰ লগত থকা জীৱন আমি যাপন কৰিব পাৰোঁ। हम लोग इस दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर का साथ रहता हुआ एक जीवन हम बिता सकते हैं, और मरने के बाद परमेश्वर का साथ हम लोग हमेशा के लिए हम लोग जिंदा रह के हमेशा हम लोग जिंदा रह सकता है। लेकिन आप परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं करते हो, आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हो, आप परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हो, तो आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। परमेश्वर के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपको इटर्नल हेल, हमेशा रहने वाला आग में आपको झोंकना पड़ेगा। सदाय थका जुईत आपनाक पेलाब लागिब। सो राइट नाउ लेट मी डिस्कस हाउ वी कैन हैव the eternal life. এতিয়া আমি পটাপট সোনকালে জলদি আলোচনা কৰিম কি কণ্ডিশ্যন আছে ইটাৰনেল লাইফ পাবৰ কাৰণে। বহুত টান নহয়। আমি ভাবো ইটাৰনেল লাইফ পাবৰ কাৰণে বহুত টান আছে, বহুত কষ্ট আছে। হা, কষ্ট তাৰ কাৰণে হয় যাৰ কাৰণে যিজনে বহুত খালি দূৰৰ পৰা প্লেনিং কৰি থাকে, দূৰৰ পৰা বহুত ভাল লাগে।
इसमें क्या बोलता है, कभी इंस्टाग्राम में या कभी इसमें यूट्यूब में देखता हूँ जो बॉडी बिल्डर लोग अपना बॉडी को बनाते हैं, बहुत सुंदर से दो क्या करता है, एकदम आराम से इसे कर देता है, आराम से इसे करता है, उठक बैठक करता है। मैं सोचता हूँ वाह, काल से मैं करूँगा, मेरा भी बॉडी ऐसा होना चाहिए। कभी सोचता हूँ दिल में, मेरा भी विचार है करूँगा, लेकिन वो सिर्फ सोचना दिमाग में ही होता है बस। उसको देख लिया, जब वो चैप्टर ख़त्म, फिर दुनियादारी में जब फिर देखता हूँ, अरे मैं तो एक्सरसाइज करना था, मैं तो ऐसे वो क्या बोलते हैं डंबल मैंने उठाना था, मैंने ये करना था, मैं सोचते ही रहता हूँ। तो मेरे लिए कठिन है वो। लेकिन जो व्यक्ति उसको एक जो अपना लाइफ का पार्ट बन के, जीवन का हिस्सा बन के मानता है, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो सुबह हो शाम हो वो एक्सरसाइज करेगा और अपना बॉडी को, अपना शरीर को वो अच्छा से रखेगा। इटर्नल लाइफ मिलने के लिए दूर से देखने के लिए बहुत तकलीफ है। क्रिश्चियनिटी बहुत हार्ड है, नहीं सकता है, लेकिन नहीं, यीशु मसीह कहता है मेरा जो भार है, मेरा जो वेट है बहुत लाइट है, मोरजी बुझा मोरजी भार बहुत लघु। If you read Matthew chapter 11 verses 28 to 30, তাত আপুনি লিখা আছে, হে পৰিশ্ৰান্ত ভাৰাক্ৰান্ত লোকসকল মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমালোকক জিৰণি দিম, মোৰ ভাৰ সুসহ্য, ইটছ ইজি টু বেয়াৰ। ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাবিলাক বহুত কঠিন নহয়। চ' ফাৰ্ষ্ট থিং, रिनाउंसिएशन, त्याग करा। फर्स्ट थिंग, आपको इटर्नल लाइफ रिसीव करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, रिनाउंसिएशन। लूक चैप्टर 28 वर्सेस 28 to 30, जब पतरस ने यीशु को पूछा, लूक चैप्टर 18 वर्सेस 28 to 30, हे प्रभु, आपके लिए तो हम लोग सब कुछ छोड़ के चला आया, ना परिवार रहा, ना अपना बिजनेस, मछली पकड़ने वाला बिजनेस वो रहा, ना अपना फ्रेंड सर्कल रहा, सब कुछ हम लोग त्याग करके आपका पीछे हो लिया। यीशु ने क्या बोला, आप उस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला? Jesus said to them, if someone left home or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will receive many times in this world and will receive eternal life। जो मेरे लिए या जो अपना परिवार को छोड़ेगा, अपना जो भी जितना भी बिजनेस को या अपना परिवार का सदस्य को छोड़ के मेरा पीछे हो लेगा, मेरा पीछे आएगा, इस दुनिया में उसको बहुत सा मिलेगा और इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन आपको मिलेगा। इस वचन को आप बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन यीशु को विश्वास करने के लिए अपना परिवार को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बाइबल ये नहीं कहते हैं कि आप परिवार को छोड़ के यीशु का पास आए। बाइबल ये कहती है फर्स्ट यू नो अबाउट गॉड, पहले आप परमेश्वर का बारे में जानें। एक परिवार में किसी एक सदस्य को अगर परमेश्वर का बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, वो अपना परिवार को सिखाएगा, वो बताएगा, वो सही रास्ता को दिखाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह का बारे में जानते हैं, वो दूसरा को बताने के लिए वो अपना परिवार में बताएगा ही, क्योंकि वो अपना परिवार है, सदस्य है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुमको परिवार का लिए चिंता नहीं। मैं यीशु का प्रभु का पास आएगा, प्रार्थना करेगा या मैं बाइबल का अध्ययन करेगा तो मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा दोस्त मुझे खराब पाएगा, इसलिए मैं छोड़ो प्रभु का पास वचन को नहीं सुनना है, मैं उनका साथ में रहना है क्योंकि उसी को मैं प्यार करता हूँ। तो ये बात नहीं कह रहा है प्रभु। पहले आप उन लोगों को बचाने के लिए पहले आप बचे। First, you know the word of God, then know the love of God, then know about the Christ, then you will be safe। तो आप क्या होगा? सेफ होगा। उसका बाद आप जाके अपना परिवार को बोलेंगे, यस मैंने यीशु को किस लिए ग्रहण किया? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति वो कभी नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा, इटर्नल लाइफ मिलेगा। इसीलिए मैं यीशु को ग्रहण किया, क्योंकि इस दुनिया का बात है ही नहीं कुछ। मैं यहाँ 70 साल 80 साल जिंदा रहूंगा, उसका बाद मुझे यहाँ मरना ही है, सभी व्यक्ति को मरना है। लेकिन बाइबल बोलते हैं कि मरने का बाद भी एक जीवन है।
मुझे उस जीवन के लिए चिंता है, इस जीवन के लिए नहीं। अगर उस जीवन में जो अनंत जीवन मुझे प्राप्त होता है तो मैं सबसे खुशी सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। इसीलिए आपको त्याग करना होगा, बहुत सा त्याग आपको देना पड़ेगा। वो त्याग क्या है? आप अपना परिवार को तो आप प्यार करते हो, लेकिन पहले आप यीशु को प्यार करें, क्योंकि बाइबल कहते हैं ही लव्स अस फर्स्ट। उसी ने हमें प्यार किया, परमेश्वर ने हमें प्यार किया। जॉन चैप्टर 3:16 द मिरेकल वर्स, उसमें लिखा है गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही हैज सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौटा बेटा को भेज दिया, ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए, वो हमेशा रहने वाला जीवन पाए। इसीलिए आपको त्याग करना जरूरी है, बहुत चीज़ों को जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका आंख का बहुत प्रिय है, लेकिन यीशु के लिए आप उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको ये बात प्रभु कहता है, तुम एक को छोड़ो मैं तुम्हें अनेक दूंगा, और लास्ट में तुमको इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन दूंगा। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 14 and 15, फेथ इन क्राइस्ट, यीशु मसीह का ऊपर आपका विश्वास होना पड़ेगा। फेथ, विश्वास, मोर যিশুৰ ওপৰত আপোনাৰ দৃঢ় বিশ্বাস হ'ব, অলপ বিশ্বাস নহয়। কেনেকুৱা বিশ্বাস? জন চেপ্টাৰ 3:14-15 কৈছে যে হাজাৰ লাখ লাখ ইজৰাইল জাতিক যেতিয়া সাপে কামুৰিছিলে আৰু গাটো জ্বলন পোৰণ কৰি মানুহবিলাক মৰিছিলে, সেইখিনি সময়ত ঈশ্বৰে মচিক ক'লে যেনেকুৱা যি সাপে কামুৰিছে সেই সাপৰ পিতলৰ এডাল সাপ বনাই লাঠি এডাল ওপৰত ৰাখি সাপটো পাহাৰৰ ওপৰত ওখ জেগাত ৰাখি দিয়া। কোনোবা মানুহক যদি সাপে কামোৰা মানুহে যদি সেই সাপটোৰ ফালে চাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বাচিব। আজি আপুনি আৰু আমি, আমাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে এটা চিম্বল, এটা প্ৰতীক দিছে, আৰু সেই প্ৰতীকটো হৈছে ক্ৰুচটো। এই ক্ৰুচটো যেতিয়ালৈকে যীশুক তাক পানিশমেণ্ট দিয়া हुआ नासिले, শাস্তি দিয়া नासिले, क्रूस बहुत भय लगा। और जो क्रूस जिसको हम लोग आज घर में रखते हैं, चर्च पे रखते हैं, वो एक बहुत ही डरावना चीज़ था, बहुत ही डरावना चीज़। पनिशमेंट देने के लिए सबसे ज़्यादा जिसको पनिशमेंट सबसे लास्ट, मतलब उससे ऊपर पनिशमेंट नहीं है, उसको देने के लिए क्रॉस सिंबलाइज किया जाता था। मैंने उस दिन टेररिस्ट लोग कैसे आदमी लोग को पनिशमेंट देता है, टॉर्चर करता है, मैंने देखा था। वो बोलने के लिए भी नहीं सकता है, इतना शरीर में वो लोग को टॉर्चर करता है। जैसे ISIS उग्रपंथी लोग यजीदी लोग को या जितना भी सिपाही लोग को टॉर्चर किया था। आप अगर आप उसको देखेंगे, आप उसमें आप कांपने लगेंगे, पढ़ने के बाद भी आपको कांपना आएगा, इतना टॉर्चर किया करता था, इतना उन लोग को पनिशमेंट देता था। उसी तरह यीशु मसीह का क्रॉस में देने का पहले वो क्रॉस एक टॉर्चर का प्रतीक था, लेकिन जब यीशु को उस सूली पे, उस क्रॉस पे चढ़ाया गया, उसका बाद वो क्रॉस हम सब के लिए सबसे प्यारा चीज़ हो गया, क्योंकि इस क्रॉस पे ही मेरा हर एक पाप को ढाल दिया गया। इस क्रॉस पे मेरा हर एक दुख को उसमें दे दिया गया, और इस क्रूस के द्वारा मैं पाप से छुटकारा पाया। क्रूसते क्रूसते जो देखिलो पोहर, তাত মোৰ পাপৰ বোজা গল বাগৰি, তাত বিশ্বাস কৰি পালো মই দৃষ্টি, আৰু মই এতিয়া সদায় সুখী। মই হে কৰা পাপৰ কাৰণ প্ৰাণ দিলে দয়াময়, অসীম অনুগ্ৰহ প্ৰেম অপাৰ, কৃপাও তেওঁৰ অগম্য। ক্ৰুচত
ক্ৰুচতে য'ত দেখিলো পোহৰ তাত মোৰ পাপৰ বোজা গ'ল বাগৰি তাত বিশ্বাস কৰি পালো মই দৃষ্টি আৰু মই এতিয়া সদায় সুখী To receive eternal life, you have to put your faith on the cross. That means you have to trust Jesus Christ. You have to receive Him as your personal Savior. Because until and unless you receive Him as your personal Savior, you cannot enter in the heaven, in the kingdom of God. जब तक आप यीशु को विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप यीशु का पर अपना विश्वास को नहीं रखेंगे, तब तक आप अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे वैकुंठ प्रयाण आप स्वर्ग में घुसने के लिए नहीं सकेंगे Number 3 we have to do some spiritual activities to receive eternal life. You have to do some spiritual activities. You have to win souls. Apuni অনন্ত জীবন পাবৰ কাৰণে বাইবেলে কৈছে আপুনি কিছুমান আত্মিক কাম কৰিব লাগিব আত্মিক সাৰ্ভিস আপুনি আত্মা জয় কৰিব লাগিব whether directly you go and preach the word of God and win the soul for the Christ or indirectly help others to win the soul for Christ whether directly or indirectly you have to involve in the noble work of spirit. If you read John chapter 4 verses 35 and 36 do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields, they are ripe for harvest. Even now the reaper draw his wages, even now he harvests the crop for the eternal life so that the sower and the reaper may be glad together. এতিয়া ইয়াতে কৈছে আৰু 4 মাহ আমি অপেক্ষা কৰো আৰু ধান পকিব তাৰ পৰা কাটিম কিন্তু এতিয়া যিসকলে হিঁচি আছে তেওঁলোকে হিঁচি আছে আৰু যিসকলে যিজন মালিক তেওঁ বাট চাই আছে যে এতিয়া কেতিয়া মই শস্যটো কাটি লৈ যাম যেতিয়া শস্য ৰোৱাবিলাক और शस्य जिजने दाबो लोग दुईजने आनंदित है ये नहीं कि जो बोने वाला सिर्फ आनंद करता है जो उसमें काटने वाला भी आनंदित होता है क्योंकि बोने वाला बहुत तकलीफ करके बोता है लेकिन जो काटने वाला जो काटता है अपना फसल को वो भी आनंद होता है क्योंकि बोने वाला जो तकलीफ से बोआ उसका फल आज मैं काट के लेके जा रहा हूँ इसका मतलब है जो बोने वाला का मतलब है प्रचार करना जो प्रचार करता है अपना परमेश्वर का वचन को देता है आदमी लोगों को प्रचारक लोग को कितना तकलीफ सहन करना पड़ता है आदमी लोग गाली देता है ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करने से उसको ठट्टा करता है नेग्लेक्ट करता है कभी उसको मारता भी है लेकिन वो प्रभु का वचन वो भी देते हैं काटने वाला कौन है जो मालिक प्रभु उसका दास लोग स्वर्गदूत जब वो काटेंगे मतलब फसल को लेके अपना बर्न में अपना गोदाम में रखेंगे वो आनंदित होता है इसीलिए आप परमेश्वर का आनंदित देखने के लिए आज आपको क्या करना है बोना है प्रेज द लॉर्ड আপুনি যদি বিচাৰিছে ঈশ্বৰক শেষৰ সময়ত আনন্দত দেখিবৰ কাৰণে তেতিয়াহলে আপুনি আজি ঈশ্বৰৰ কামটো কৰক তেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত এই মানুহবিলাকে ঈশ্বৰৰ লগত ইটাৰনেল লাইফ অনন্ত জীৱন পাব পাৰিব তাৰ মানে আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনাৰ বাক্যৰ যোগেদি মানুহে বহুত মানুহবিলাকে ঈশ্বৰক জানিব আৰু শেষৰ দিনাখন তেওঁলোকে যেতিয়া মৃত্যু হ'ব বা যেতিয়া যীশু আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে যীশুৰ লগত স্বৰ্গলৈ যাব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ আনন্দ আৰু যীশুৰ আনন্দ দুইজনে মিলি আপুনি আনন্দ কৰিব পাৰিব অনন্ত জীৱন John chapter 12:25 The man who loves his life will lose it while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life जी माने निजर प्राणটো बहुत ভাল পায় হি তাক হেৰুৱাব কিন্তু जी माने निजर प्राणটো কোনো একো নাই মোৰ প্ৰাণটো একো নাই বুলি ভাবনা কৰে তেওঁ অনন্ত জীৱন পাব that means self sacrifice निजर কাৰণে बहुत चिंता करो আমি खुद के लिए बहुत चिंतित होते हैं लेकिन जो दूसरों के लिए चिंता करता है जो दूसरों के लिए चिंता करता है कि मेरा कुछ भी नहीं है मैं उस प्राण को बचाना है प्रभु का वचन देना है मैंने पहले भी इस एग्जाम्पल को देता था जल्दी में ख़त्म करूँगा जो साधु सुंदर सिंह जमींदार का बेटा
बहुत बड़ा जमींदार का, उस समय हजार हजार बीघा जमीन का मालिक था उसका पिताजी। लेकिन जब साधु सुंदर सिंह प्रभु को जाना, यीशु मसीह को जाना, उसने अपना पिता का, उस समय का जमींदार बनने से कितना करोड़ करोड़ रुपया रहने वाला व्यक्ति, जमीन का, उसके घर में काम करने वाला, काम जितना भी आदमी लोग होता था, लेकिन फिर भी वो यीशु को जाना। यीशु को जानने के लिए अपना घर परिवार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पिताजी बोला तो हमारा घर में नहीं रह सकता है, मैं तुम्हें निकालता हूं अपना घर से। उसको भगा दिया गया। खाली पांव उसने पहाड़ चढ़ के जाके तिब्बत में जाके प्रभु का वचन प्रचार किया। वो अपना घर में आराम से सुख से रह सकता था, वो अच्छा से खा सकता था, वो अपना सोने का थाली में खा के आराम से मखमल बिस्तरा में सो सकता था। ऐसा व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु को जाना, वो अपना लाइफ के लिए चिंता नहीं किया, अपना सुख और आनंद के लिए चिंता नहीं किया। आज बहुत सा व्यक्ति जो प्रभु का मसीही है, करोड़ों रुपया उसका पास है और करोड़ रुपया वो ढूंढता है कि मेरा और भी मिले, लेकिन कभी भी प्रभु के लिए चिंता नहीं करता है कि मैं तो उसको थोड़ा मदद करूं, मैं परमेश्वर का नाम में थोड़ा मदद कर दूं। ऐसा व्यक्ति भी है दुनिया में जो अपना टाइट्स को भी देते हैं तो हिसाब करता है, हिसाब करके लिखता है। गलत बात है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अपने आप में कुछ भी है नहीं। जितना भी प्रभु ने मुझे दिया है वो प्रभु का दान है, मैं कुछ भी हूं ही नहीं। आप प्रभु का काम में इस्तेमाल कीजिए। यूज योर मनी, use your time, give your talent to the kingdom of God, and God will use it, and finally at last you will receive eternal life. आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा कि आज प्रभु ने हमें इटर्नल लाइफ क्या चीज़ है, अनंत जीवन क्या है, उसका बारे में प्रभु ने बताया, और इटर्नल लाइफ हमें कैसे प्राप्त कर सके उसका बारे में प्रभु ने हमें बताया। रिमेंबर वन थिंग, आपको ये बात को हमेशा याद रखना है, टू नो द रियल गॉड। हसा ईश्वरक जना और ईश्वर बाक्यटो मानि चला और जिजने যীশু খ্ৰীষ্টক जना, ये হৈছে अनंत जीवन। এই দুনিয়াত বা এই বিশ্বত আৰু কতো নাই, কোনো জেগা নাই, কোনো ৰাস্তা নাই যিটো ৰাস্তা দি আপুনি স্বৰ্গলৈ যাব পাৰিব, যিটো কোনো এটা উপায় নাই, পথ নাই যিটো পথেদি আপুনি স্বৰ্গলৈ যাব পাৰিব। থকা হ'লে যীশুৱে এই কথাটো নকলেহেঁতেন, ময়ে জীৱন, ময়ে সত্য, ময়ে বাট। যীশুৱে এই কথাটো নকলে হয়, আন বহুত ৰাস্তা থকা হ'লে যীশুৱে এই কথাটো কেতিয়াও নকলে হয়, ময়ে সত্য, ময়ে জীৱন, ময়ে বাট। মোৰ যোগেদি নগলে कोनेও पितृ ओसरলৈ যাব নোৱাৰে। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़े सुने तो आपको पता चलेगा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग ऐसा कोई रूट नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ता है यीशु मसीह। आज आप दिल में आप बांध लीजिए, ठान लीजिए, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन यीशु में छुपा है और मैं इस जीवन को आज प्रभु यीशु मसीह का नाम में मैं समर्पण करता हूँ। और प्रभु मेरा इस जीवन को आशीष करे, इस्तेमाल करे और प्रभु इस जीवन को चलाए। आप इसे प्रभु का हाथ में अपना लाइफ को सरेंडर करें। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे ताकि प्रभु का आगे हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु का आगे हम लोग प्रार्थना कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग इस समय हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु का आगे विनती करेंगे। आप विश्वास से प्रभु को बोले, प्रभु मेरा जीवन में आइए, मेरा गलतियों को, अपराध को आप माफ़ कर दे। मैं अगर अनंत जीवन से बहुत दूर चला गया हूँ या अनंत जीवन का रास्ता में हो ही नहीं, आज मुझे अनंत जीवन आने के लिए, आपका पास आने के लिए मुझे मौका दे। जैसे आप जोशुआ को कहा था, मेरा वचन को ध्यान कर रात दिन और इसमें से तुम इधर उधर मत चल, मैं भी आपका वचन में हमेशा रह सकूं और आपका साथ रह सकूं और आप जैसे चाहते हैं मैं ऐसे कर सकूं। आप मेरा इच्छा के अनुसार नहीं, आपका इच्छा के अनुसार मुझे आप चलाइए। आप ऐसे प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें।
ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र ईश्वर पिता, मैं धन्यवाद देसु पिता, सुंदर अनुग्रह प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने सुंदर समय अवसर हमें प्रदान किया और आज इस समय जो आपका वचन बोलने के लिए आप मुझे जो पवित्र आत्मा के द्वारा मदद किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप प्यारे प्रभु है, आप आशीष देने वाला, आप अनुग्रह करने वाला, आप पवित्र और आप अति दयालु प्रभु है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप धन्यवाद पाने का योग्य है। हालेलुया प्रभु, मैं आपका महिमा, आदर और सम्मान देता हूँ प्रभु। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आपका बारे में, अनंत जीवन का बारे में और भी जानने के लिए आपने मुझे मौका दिया, और भी आपका अनंत जीवन का बारे में जानने के लिए मुझे आपने जो अवसर प्रदान किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैं आपका आगे निवेदन करता हूँ, जितना भी भाई बहन आज यहाँ उपस्थित है, जितना भी भाई बहन फेसबुक लाइव के द्वारा, यूट्यूब लाइव के द्वारा इस वचन को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका पवित्र लहू के द्वारा हर एक को प्रभु आप धो दे। आप उन लोग का गुनाहों को, आप उन लोग का पाप को आपका पवित्र लहू के द्वारा धोकर आप उन्हें शुद्ध कर दीजिए। जितना भी दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता हूँ, हर एक भाई और बहन का जीवन में से इसी वक्त निकल जाने के लिए। जितना भी भाई बहन आज यहाँ उपस्थित है, जितना भी भाई बहन यहाँ अभी जो फेसबुक लाइव के द्वारा, यूट्यूब लाइव के द्वारा मुझे जो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक का जीवन में से तो निकला यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा तो निकला। अभी इसी वक्त छोड़ दे यीशु मसीह का नाम से, शिखा लाभा। ओ हालेलुया प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका पवित्र उपस्थिति के लिए, आपका प्यार के लिए, आपका दया के लिए, आपका अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओ रबा शाका बारा बारा, हालेलुया प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो। आपका वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर वचन आपने दिया, सुंदर आपने आशीष किया, सुंदर आपने प्रभु आपने मुझे चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए आपका पवित्र आत्मा हर एक भाई का ऊपर, हर एक बहन का ऊपर इस समय आने दीजिए प्रभु। आपका पवित्र अनुग्रह उन लोग का जीवन में पर आने दीजिए, आपका सामर्थ्य उनका जीवन पर आने दीजिए और उसको भर दीजिए पिता। आपका सामर्थ्य से भर दीजिए, आपका अनुग्रह से भर दीजिए, आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर एक तकलीफ से प्रभु उनको छुड़ा लीजिए और प्रभु आपका संतान बनने दे प्रभु। आप आपका संतान लोग को आपका पास आने दे, करीब आने दे प्रभु। आप उनको अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए प्रभु, इटर्निटी में घुसने के लिए आप आशीष करें प्रभु। जो भी असाइनमेंट आप रखा है उन लोग के लिए, वो उसको पूरा करने के लिए शक्ति दे। जो भी काम करने के लिए प्रभु आज उनको चुना है, आप उन लोग को आशीष कीजिए प्रभु। आपका संतान कोई बीमार हो सकता है, आपका संतान इस समय बहुत दुख में हो सकता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितना भी संतान भाई बहन बीमार में है, तकलीफ में है, समस्या में है, आप उन लोग का जीवन में काम करें। ओ रबा शाका बारा रबा, हालेलुया प्रभु। आपका जीवन में काम, आप उन लोग का जीवन में काम करें, आप उन लोग को छू ले प्रभु। आज इस समय पवित्र आत्मा उन लोग को छू ले, पवित्र आत्मा उन लोग को छू ले। Fill with Holy Spirit, fill with Holy Spirit, fill with Holy Spirit। पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा का आशीष से भर जाइए प्रभु। आप उनका जीवन में काम करें। ओ हालेलुया प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे। इस समय आशीष काम कर रहा है आप लोगों का ऊपर प्रभु का, इस समय प्रभु का आशीष काम कर रहे हैं आप लोगों का ऊपर। आप धन्यवाद दे, आप लोग धन्यवाद दे। ओ राबारी दी 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 शिकाला बाराबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस समय प्रभु आपको चंगा कर रहा है, इस समय प्रभु आपको चंगा कर रहा है, आपको प्रभु चंगा कर रहा है। ओ जो माँ इस समय बहुत ही एक बहन, एक माँ को दिखा रहा है, इस समय बहुत ही बीमार है, आपको चंगा कर रहे प्रभु। आपको जादू टूना करके, आपको जादू मंत्र के द्वारा बांध के रखा गया था, लेकिन इस समय प्रभु आपको छुड़ा रहा है, इस समय प्रभु आपको छुड़ा रहा है, प्रभु आपको छुड़ा रहा है। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से मिराकल हो रहा है आपका जीवन में, मिराकल हो रहा है आपका जीवन में, मिराकल हो रहा है। जितना घर में जादू मंत्र का आत्मा काम कर रहा है, इस समय उस शैतान को मैं भगा रहा हूं यीशु का नाम से, यीशु मसीह का नाम से। जितना जिसका घर में जो शैतान काम करता है,
जिसका घर में शैतान आके रात को डिस्टर्ब करता है, कोई आवाज दे के, कोई किसी का आवाज से बुला के, कोई किसी चीज गिरा के शैतान काम कर रहा है, उस घर में से दुष्ट आत्मा को मैं निकाल रहा हूं यीशु मसीह का नाम से। अभी इसी वक्त तू छोड़ दे, यीशु वक्त तू छोड़ दे। जितना भी भूत प्रेत रहने वाला घर, लोग जिसका घर में भूत प्रेत रहता है, उससे निकला यीशु मसीह का नाम से। जादू मंत्र करने वाला, जितना भी जो भी गंदा काम करने वाला शैतान, निकल जा यीशु का नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका संतान लोग का ऊपर आपका आशीष रहने दे, आपका शक्ति से बाहर भर दे, आपका पवित्र आत्मा से भर दे। आज से वो घर शांति होने दे, आज से उस घर शांति होने दे, आज से उन लोगों का घर पर शांति आने दे, आज उन लोगों का घर में आपका शांति आने दे। प्रभु का शांति उस घर पे आ रहा है इस समय। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोभ लालच से जो ग्रसित है, प्रभु इस समय आपको लोभ लालच से आजाद कर रहा है। आप दुनिया का चीजों के लिए बहुत लोभी है, लेकिन प्रभु आपको इस समय लोभ से आजाद कर रहा है। क्योंकि आपको लोभ करना है तो प्रभु का वचन को, आपको लालच करना है तो प्रभु का प्यार, प्रभु का आशीष पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु आपको ऐसा अनुग्रह करे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, आपने आशीष किया, सुंदर समय आपने दिया, हमें इस्तेमाल किया। जितना भी भाई बहन आज इकट्ठा हुए हैं, हर एक का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष रहने दे। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रभु आपने सुंदर समय दिया। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you.